Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today, what we are going to do, we are going to do the exercise part, है ना? आज हमको कौन सा part करना है बेटा? Exercise part करना है, and we will be doing that exercise part right now only. So be ready with your pen and pencils, right? Be ready with your pencils. What you have to do, you have to write answers togetherly with me only, right? What we are going to do today, we are going to start chapter number 5, that is paragraph writing, right? And that is on page number 96, right? So we will be doing this today. Just a second. Yeah, yes, we will be doing this today, right? So the first question we have is question number first we have, that is, now write a personal narrative in about 80 to 100 words on my first journey by train, right? So we will be doing this today, right? Just a second. Yeah, we will be doing this. What I will be doing, I will be writing on the screen, and what you have to do, you have to copy and paste that part. आपको उसको copy and paste करना होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप उसको copy paste करते चले जाइएगा. All right, let's start. I love to travel. I love to travel, and we mostly travel by car. And we mostly, I love to travel, and we mostly travel by car. But it's first time we were going by train, right? We were going to Delhi from Udaipur, right? These students, I'm writing continuously, and you have to write with me only, right? Keep writing. Keep your pencils in your hand and keep writing. Yeah, so let me recall it, or let me revise it for you. I love to travel, and we mostly travel by car, but it's first time we were going by train. We were going to Delhi from Udaipur. The journey by train is very enjoyable. The journey by train is very enjoyable. The uncle who was sitting next to us, was also वेरी काइंड. जनरली आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो कोई ना कोई ऐसे अंकल या ऐसे आंटी हमको मिल ही जाते हैं जो कि बहुत ही काइंड होते हैं, जिनका नेचर, जिनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है. सो व्हाट वी हैव रिटन टिल नाउ, वी हैव रिटन आई लव टू ट्रैवल एंड वी मोस्टली ट्रैवल बाय कार, but it's first time we were going by train. We were going to Delhi from Udaipur. The journey by train is very enjoyable. The uncle who was sitting next to us was also very kind. यानी कि जो अंकल मेरे पास में बैठे हुए थे वो कैसे थे, वो बहुत ही काइंड थे. He told us a story. उन्होंने हमें क्या सुनाई, एक स्टोरी सुनाई. Some strange people came and sang a beautiful song. ठीक है, आपने देखा होगा जनरली ऐसा होता है, ट्रेन से जब ट्रेवल करते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ स्ट्रेंज पीपल आ जाते हैं और दे स्टार्ट सिंगिंग, राइट? आई एंजॉयड इट द मोस्ट.
आई एंजॉयड इट द मोस्ट मीन्स व्हाट ये स्टूडेंट्स कि मैंने उसे सबसे ज्यादा एंजॉय किया। एंड एट द लास्ट वी विल राइट आई विल नेवर फॉरगेट, आई विल नेवर फॉरगेट माय फर्स्ट journey by train. I will never forget my first journey by train. So this is your complete paragraph on my first journey by train. ठीक है, आपका टॉपिक क्या था? My first journey by train, and we have written it completely. Right? So this is your personal narrative. Personal narrative means what, dear students? कि कोई इंसिडेंट पास्ट में हुआ था और आपने क्या किया, उस इंसिडेंट के बारे में आप वापस से जब बताते हैं तो दैट टाइम वी यूज दी पर्सनल नैरेटिव। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली डियर स्टूडेंट, हम लोग पर्सनली नरेट कर रहे हैं किसी स्टोरी को, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पर्सनल नैरेटिव। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पे, यानी कि हमारे को भी किसी चीज को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। राइट, इन लास्ट क्लास वी डिस्क्राइब द स्कूल लाइब्रेरी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसको डिस्क्राइब किया था डियर स्टूडेंट? स्कूल लाइब्रेरी को हमने डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से हमारी स्कूल की लाइब्रेरी होती है, हमें जाना क्यों अच्छा लगता है वहां पे, एंड एवरीथिंग वी डिस्कस दैट देयर। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट माय ब्यूटीफुल हाउस। आज मैं किसके बारे में आज हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट? टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट माय ब्यूटीफुल हाउस। आज हम माय ब्यूटीफुल हाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप दैट दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। यस, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ राइट अ descriptive paragraph, write a descriptive paragraph of about 80 to 100 words, 80 to 100 words on my beautiful हाउस। ठीक है बच्चों, हमें अब किस पे लिखना है? माय ब्यूटीफुल हाउस पे हम लोगों को एक पैराग्राफ, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम लोगों को माय ब्यूटीफुल हाउस पे लिखना है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू जस्ट कॉपी दैट द हाउस इन विच आई लिव, I live with my parents and family is I live with my parents and family is two-story building. It's two-story building, right? We have four rooms, 2 halls and 1 kitchen. So dear student, what we are doing, we have to write descriptive paragraph, right? हमको descriptive paragraph लिखना था। So what we are doing here, we are describing our my beautiful house। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे beautiful house को describe कर रहे हैं। So what we are writing, the house in which I live, यानी कि जिस house में मैं रहता हूँ, with my parents and family is a 2-story building। वो क्या है? 2-story की building, यानी कि उस पे 2 floors है, ground floor and the first floor। We have 4 rooms। हमारे घर में कितने रूम है? वी हैव 4 रूम्स, 2 हॉल्स एंड 1 किचन। 4 रूम है, 2 हॉल्स हैं एंड 1 किचन है, राइट? 1 किचन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू राइट वी आल्सो हैव 1 टेंपल रूम, सॉरी, वी आल्सो हैव 1 टेंपल रूम। जनरली ऐसा होता है जनरल स्टूडेंट्स कि हम लोगों के घर में टेंपल रूम भी होता है, इन which we worship God। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम गॉड की वर्शिप करते हैं। वी ऑल्सो हैव 1 टेंपल रूम इन विच वी वर्शिप गॉड। वी हैव 1 ड्राइंग रूम, वी हैव 1 ड्राइंग रूम where our guests come and meet। ठीक है, एक ड्राइंग रूम है जहां पे हमारे गेस्ट आते हैं और वो आकर के हमसे मिलते हैं। ठीक है,
We have one dining room as well. We have one dining room as well. We have one dining room as well, where we eat with all our फैमिली मेंबर्स, यानी कि जहां पे हम हमारे सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं. So what we are doing, dear students, we are telling that our house is a two-story building. We have 4 rooms, 2 halls and 1 kitchen, जहाँ पे 2 hall और 1 kitchen है. We also have one temple room in which we worship God. और हमारे हाउस में एक टेम्पल भी है जहाँ पे हम गॉड की वर्शिप करते हैं. We have one drawing room where our guests come and meet. ठीक है, जहां हमारे गेस्ट आते हैं हमसे मिलते हैं. वी हैव वन डाइनिंग रूम एज वेल, हमारे घर पे एक डाइनिंग रूम भी है एज वेल, वेयर वी ईट विथ ऑल आवर फैमिली मेंबर्स, जहां हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ईट करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं. ठीक है, एट द एंड व्हाट यू कैन राइट, माय हाउस इज ब्यूटीफुल एंड आई लव इट वेरी मच, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ. मेरा हाउस जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं इसे बहुत ही पसंद करता हूँ. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, दैट इज माय ब्यूटीफुल हाउस. तो बेटा पहला, द फर्स्ट वन वाज अबाउट दी पर्सनल नैरेटिव, यानी कि कोई इंसिडेंट हुआ है, आपने उसको क्या किया था, आपने उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर दिया था. और सेकंड वाला जो था डियर स्टूडेंट, उसमें डिस्क्रिप्टिव था. डिस्क्रिप्टिव यानी कि माय ब्यूटीफुल हाउस के बारे में आपको टॉपिक दिया रखा था, आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया. Right, I hope that is clear to you. Both the paragraphs you have completed. So that's all for this session. We just had to complete the paragraph writing, that is chapter number 5, and now the chapter is over, the chapter is finished. Right, dear students, so that's all for today's session. I hope you have understood. Thank you everyone for attending it.